ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੁ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਿਥਿਆ ਮਾਨੋ। ਸਗਰੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੁ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਿਥਿਆ ਮਾਨੋ। ਸਗਰੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ। ਪਾਇਓ ਨਾਹਿ ਤਿਹ ਪਾਰਾ। ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਛਾਨੋ। ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੇ ਨਿਆਰਾ। ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰਿ ਕੋ। ਕਬਹੂ ਨਾਹਿ ਸੰਭਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਜਗ ਬੰਦਨ। ਰਾਖੋ ਬਿਰਦ ਤੁਹਾਰਾ। ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰਿ ਕੋ। ਕਬਹੂ ਨਾਹਿ ਸੰਭਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਜਗ ਬੰਦਨ। ਰਾਖੋ ਬਿਰਦ ਤੁਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
1621 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1621 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਰੋਵਰ ਹੋਰ ਨੇ। 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਬਬੇਕਸਰ ਔਰ ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਭਾਰਤ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਨ 1621 ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ। 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਮਾਊਂਟ, ਐਲ ਸਬਰਾਂਟੇ, ਟਰੇਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਫਰਿਜਨੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਚਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 703 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 703 ਅੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਇਕਸਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਮ ਮੋਟੀ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਹਸਤ ਲਿਖਤ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1430 ਅੰਗ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਕਹਿ ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨੇ ਕੋ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫੁਨੇ ਨੇ, ਚੌਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ। 1430 ਅੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਬਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨੰਦ ਉਹ ਲਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਵਾਜਾ ਵੱਜੇਗਾ ਜਾਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਜੇਗਾ, ਤਬਲਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਇਹ ਗਾਣਗੇ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਗ ਦੀ ਤਸੀਰ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਪਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਪਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਪਾਠ ਹੈ ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਨ ਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇ ਮਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਸਾਚਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਕੜਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਗਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਹਿ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਹੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥੂਲ ਦਿਸੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਲੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਥਾਲੀ ਗਹਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਗਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਵਲ ਦਿਸਦੀਆਂ ਕੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਣਦਿਸਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਕੜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਪਕੜਿਆ, ਬਰਤਨ ਪਕੜੇ, ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਪਕੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਕਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨ ਰੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਵਿਚਾਰਾ।
इत्थे याद रखियो बब्बे दे उत्ते ਲਾਂ नहीं लगी, बब्बे नूं सिहारी है बेचारा। ਇਹਦਾ लफ्जी अर्थ असी विचार करांगे। ਇਹਦਾ भाव अर्थ हो गया, हे मन तू सच्चे नाम नूं अपने अंदर घुट के पकड़, इस चीज़ दी विचार कर। जां इहो अर्थ ने, हे मन तू सच्ची विचार नूं पकड़, सच्चे ज्ञान नूं पकड़। की सच्चा ज्ञान जी? कहन लगे कि राम नाम बिन मिथ्या मानो, राम नाम बिन मिथ्या मानो। राम दा लफ्जी अर्थ है परमात्मा वाहिगुरू। आप संगत नूं पिछले दिनी मैं अर्ज की कि गुरबाणी विच जिहड़ा राम शब्द है, लफ्ज है, ये श्री रामचंद्र जी लिए भी आया है ते ये परम पिता परमात्मा वाहिगुरू वास्ते एक ओंकार लिए भी आया है। इउं कहो अवतार लिए भी आया है ते जिहड़ा अवतार पैदा करने वाला है उस पार ब्रह्म लिए भी आया है। जिमें मैं पिछले दिन एक अर्ज की कि राम शब्द जो है ये सतयुग विच भी प्रचलित सी। उंज श्री रामचंद्र जी का जन्म जो हिस्टरी कहती भी वो त्रेते विच होया। बाणी ने कहा त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो। पर सतयुग विच भी समय की वंड अनुसार प्रहलाद ने भी राम जपिया है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ श्री रामचंद्र जी की पैदाइश भी नहीं हुई तो रब लई वाहिगुरू लई जां परमात्मा लई राम शब्द उदों भी वरत्या जाता सी। बाणी च एक बचन हुंदा है, बसदा बस कीनी सब राजे बिनती करै पटरानी। वो शब्द है उहदे विच कि संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े ने खमगी पचहारे, राम कहे करताल बजावे चटिया सब बगारे। हुण वो प्रहलाद किस राम नूं बोल रहे? श्री रामचंद्र जी नूं नहीं। राम दा लफ्जी अर्थ है जो सारियां थावां ते विद्यमान है, रमिया होया है, जिहदी मौजूदगी एक निक्के जिहे रेत दे कण तो लैके पहाड़ तक है, जिहड़ा कीड़ी तो लैके हाथी तक है, जिहड़ा जड़ तो लैके चेतन तक है। राम दा लफ्जी अर्थ है जो सारियां थावां ते ही रमिया होया है। इस करके उन्होंने राम कहने। इस बाणी च इस करके राम शब्द तो रमैया भी आया। हाँ तो एक रमैया लै हूँ जा रमैया के गुण चेत प्राणी। फिर बेनती है, इत्थे गुरु जी कह रहे आ, धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, हे मेरे मन ऐस सच्ची विचार नूं पकड़, एवें झूठियां विचारां ना करी जा। सच्ची विचार की है? राम नाम बिन मिथ्या मानो। परमात्मा दे नाम तो बिन दा अर्थ बिना, ते मिथ्या दा लफ्जी अर्थ है झूठ। मिथ्या दा अर्थ जो है ही नहीं, तो ओदी गल तू क्यों करी जा रहा है? राम नाम बिन मिथ्या मानो। प्रभु दे नाम तो बिना हर चीज़ नूं झूठ जान ये नहीं रहनी। केड़ी चीज़ जी? कहन लगे सगरो। ये देखो याद रखियो, इत्थे पाठ है सगरो। सगरो दा अर्थ है सगला, सारा, जिन्हों सगरी भी बाणी च कहा गया, सकल भी आया बाणी शब्द। राम नाम बिन सगरो, ये महाराज कह राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो। ਇਹ ਸੰਸਾਰਾ, आ संसार ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ कि पहलियां तुकां जिहड़ियां ने वो साडे मेरे समझ च पै जाण। अपने सारियां दे सीधे जे इहदे अर्थ ने वो बंदिया चंगी सच्ची गल नूं मन लै, एवें झूठे लिफाफेबाजी च ना पै। परमात्मा दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ मिथ्या, हर चीज़ नाशवंत है, इन्हें खत्म हो जाना। हुण थोड़ा जिहा आप जी ध्यान दिया जी, जो मैं अर्ज आप जी नूं करनी चाहना। वेखो बड़ी सीधी जी गल कि जो कुछ भी बनया होया है ना, सच ये जे इस हर चीज़ ने एक दिन खत्म होना है। क्योंकि कल भी गुरु नानक प्रकाश विचार सी, प्रभ जू हरजू राख लियो पत मेरी, जम को त्रास पयो उर अंतर, शरण गई कृपा निध तेरी। कला इंसान नहीं, जो कुछ भी आप देखने पे, जो कोई साना देखने का मतलब ये नहीं सी सब कुछ देख ले, क्योंकि आप उस मुल्क विच रहिंदे हो जिहड़ा साइंस की हर गल नवीं सब तो पहलां करदा।
पर मैं आपनू बेनती करांगा, साडी अप्रोच तो सिर्फ आ चमकदा सूरज है ते रात नूं थोड़ा बहुता किते चंद्रमा आउंदा नज़र। असी तो अपनियां नंगियां अखां नाल जिस प्लैनेट ते रह रहे हैं ते जिहड़ा ये 4 चफेरे बाकी ग्रहां दे दुआले घूम रहा है जां इहदे दुआले घूम रहे ने सूरज दे, असी तां अपने इस जिहड़ा साडी ब्रह्मंड है, असी तां इहदे सारे ग्रहां नूं भी नंगियां अखां नाल नहीं देख सकते। सच है ना जी। पर बेनती है कला ये नहीं, जो कुछ भी इस संसार च बने है, धन गुरु तेग बहादुर साहब कहंदा हर चीज़ खत्म होएगी। ये मेरे मना सच्ची गल धारण कर लै, केवल रहेगा तो परमात्मा का नाम रहेगा। अज मैं ये थोड़ी जी व्याख्या करनी चाहना कि नाम किमें रहेगा। जदों अखर ही खत्म हो गए, बंदी खत्म हो गए, आ लिखतां सारियां खत्म हो गई। बड़े खुल दिल नाल सुनियो मेरी गल नूं, इहनूं बेअदबी च ना ले जाओ। जदों हर चीज़ मुक्की गई तो नाम किहड़ी चीज़ है जी जिहड़ी सदा रहेगा, जिन्हों बाणी वार वार कह रही है कि नाम रहेगा। पहली गल नाम है कि ये थोड़ा जिहा असीं देखांगे, हर चीज़ बाणी चों तकांगे तो साडे मेरा ख्याल में साडे ये भी शंके थोड़े जिहे निवृत्त हो जाणगे भी असीं जापने क्यों हाँ, क्यों बाणी नाम ते ज़्यादा जोर दे रही है। पहली आपनूं बेनती करांगा, देखो जिथे असीं बैठे हाँ, साइंस भी इस गल वल तुरी है तो अध्यात्मकता भी तुरी है। निंदना नहीं चाहिए। जे असीं कही जी साइंस आ माड़ी, साइंस आ माड़ी, तो साइंस वाला कहे भी रब वाले बंदे माड़े, इस लड़ाई च ना पईए। मैं अर्ज करांगा साइंस का अपना राह है, ये हर चीज़ नूं तोड़ तोड़ के देखदी है क्यों क्यों किवें, ते इत्थों तक उन्होंने ज़्यादातर मनदी जिहड़ा दिसदा पिया है। अध्यात्मक इस तरह नहीं, जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, वो इत्थों नहीं शुरू करदी भी ये क्यों किवें। सच ये वे रूहानियत जिहड़ी है इत्थों शुरू कर दी है। तेनों कुछ भी पता नहीं, जिन्हों तू मत्था टेके जो कोई तेरा गुरु कहंदा इहनूं सत बचन करके मान लै। सुनियो इस बेनती नूं कि आम तौर पर अज दा बच्चा तर्क करके कहेगा जी मैं नहीं मानता कि मैनू पहला सिद्ध करके दिओ। नहीं गुरमुखो, रूहानियत हर बंदा सिद्ध नहीं कर सकता, इनू सत बचन करके मनना ही पैंदा है। यही कारण कि जेड़े अज्ञानी लोग धर्म के बुरके दे थले पखंड करते हैं, वो सत बचन लफ्ज़ की दुरवरतों कर लग पैंदे आ। गल नूं भी जेन च रख के तुलीए, क्योंकि उन्हां कोल रूहानियत तो है नहीं, उन्हां कोल बंदगी है नहीं, पर उन्होंने लफ्ज़ वरते गुरबाणी दे जी सत बचन करके मनो। फिर उत्थे बंदा अड़ जाता भी जां तां मेरे अंदर दी तू रूहानियत पक्षों मैनू पार। पर सच कहा कि गुरु समर्थ है, समर्थ गुरु की गल सत बचन करके मनीए। जिमें एक दो बेनतियां आपनूं होर कर देना। एक बचन हुंदा गुरु साहिब गुरु रामदास दा, हम अंधुले अंध बिखै बिख राते। इहदे नाल तल्लुकात नहीं, मैं सिर्फ आरंभ चर्ज कर लगा। हम दर थे असी, अंधुले दर थे ब्लाइंड, सानू नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ शब्द वही रखियो जिहड़ा चल रहा, मन रे साचा गहो विचारो। फिर बेनती है, हजूर ने इत्थे बख्शिश की, कहन लगे हम अंधुले अंध बिखै बिखराते क्यों चालें गुर चाली। इत्थे चालें असी तुरीए, ते चाली का लफ्जी अर्थ है गुरु की चाल, ते भाव अर्थ है कि गुरु दे दसे हुए राह ते किवें तुरीए। अध्यात्मक तौर पर हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालें गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, सीधे लफ्ज ने पंजाबी दे। सतगुर दया करे सुख दाता, खम लावे आपन पाली। पाली का लफ्जी अर्थ है पल्ला, लड़। इनू बाणी च पल्ला भी कह है, पाली भी कह, ते एक शब्द अंचल ते आंचल भी आया है। सतगुर दया करे सुखदाता, खम लावे आपन पाली। सानू अपने पल्ले ना ला लो। हुण पल्ले ना लगन का मतलब की है कि आप रुमाला साहब पकड़ लांगे? जे सतगुरु जी कहने हाँ तो आप कोई हजूर का बाहर मुखी कपड़ा पकड़ांगे? नहीं प्यारो, ये अंतरीव अर्थ की ने। मैं तां क्या गहण वाली चीज़ केवल दृष्टमान नहीं, अदृष्ट भी पकड़िया जाता है। ख्याल अदृष्ट हुंदे आ, ख्याल सच्ची मुच्ची वड्डियां वड्डियां लहरां पैदा करते हैं, लोग उन्हां पिछे तुर पैंदे। इत्थे पकड़न का मतलब की है? अगे गुरु जी कहते हैं गुरसिख मीत
चलो गुर चाली। तुसी पुछ रहे हो क्यों चाल है गुर चाली, क्वेश्चन है। ते गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुर कहे, जो गुरु कहंदा है उन्होंने सत बचन करके मान लै, बस आ ही गुरु का पल्ला पकड़ना है। पर इत्थे थोड़ा तर्क किया, मैनूं पहला सिद्ध करो। दूसरी गल, एक आप सुखमनी साहिब च पदा पढ़ दिओ महाराज जी का। मैं सीधी गल, मेरी इच्छा सी भी मैं संगत नाल गल्लां रूप कथा करा, सानू एक दूजे नाल सारी सुरत जुड़ सके। सुखमनी साहिब च एक बचन पढ़ दिओ, गुर के ग्रह सेवक जो रह। इत्थे ग्रह दे अर्थ भी अंतरीव ने। एक तां गुरुद्वारे विच चलो जिवें असीं कथावाचक कीर्तनीए भाई साहब लांगरी साहब रहिंदे, सारे बंदा गुरुद्वारे दे विच थोड़ा रहिंदे। इत्थे गुर के ग्रह दा अर्थ भी ये वे कि गुरु दे शब्द दे दायरे विच रहे, गुरु दे घर च रहे, गुरु दी विचारधारा विच रहे, उन्हों ना टप्पे। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, ते किवें रहे? लंगर छक के सौं थोड़ा रहे। अगे कहंदे गुर की आग्या मन में सह। जो गुरु कहंदा है मन में सह, इहदा मतलब तन ते तां लागू होवेगी जे पहला मन मनेगा। जे मन ना मन्निया ते तन ने कित्थे मनना। कई बारी तन बद्धा चट्टी मन जाता है, पर मन ना मन्ने ते तन गुरुद्वारे बैठा रहिंदा, मन बाहर बाजार तुरिया फिरदा। इहदा मतलब क्या भी जे गुरु की गल मन्नी मन च सह। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जनावै। इस तरह रहे गुरु दे कोल। मैं एक आप जी नूं छोटी जी उदाहरण देना। चलो कहानी जां साखी इस करके नहीं हुंदी भी ये शब्द मेरे मन च बड़ी बारी आउंदा है। कई बारी हुण संगतां कहंदियां भी कदी तुसीं कोई साखी नहीं, सिर्फ शब्द शब्द बाणी। मैनूं कई बारी सुनने नूं मिलदा, पर ये भी सच है गुरमुखो, जिस दिन आप जी नूं शब्द के अर्थां दा रस आउण लग पिया ना, उदों तुसीं देखियो सारा जीवन ही पलट जाएगा। सारे झगड़े कलेश सिर्फ ओपरियां ओपरियां गल्लां दे ने। जिदन शब्द की समझ पै गई ना, राम रहीम और मौला क्या, समझ पड़ी तो रौला क्या। बेसमझी दी टकरा ने, समझदियां नहीं। एक फकीर होया है मुसलमान सूफी मंसूर, आप जी ने सुनिया होना, मंसूर अल हलाज। इहदे मुर्शद का नाम सी जुनैद। मंसूर जुनैद दे कोल गया। सूफी साहित्य विच है कि जिहड़ा जुनैद सी वो मस्जिद दे विच रह रहा सी। मंसूर ने जाके दरवाज़ा खड़काया। अंदरों आवाज़ आई, जी कौन? ते बोल भी जुनैद रहा है, कौन? मंसूर अल हाज जिहड़ा है अल खिलास, वो बूहे अगे बैठा आवाज़ दिंदा, जी मैं मंसूर। किवें आया? कहंदा मैं मसीत विच रहना चाहना, मैं रहना चाहना। अंदरों जुनैद ने आवाज़ दी, इत्थे दो दे रहन की थां नहीं, इत्थे इक्को ही रह सकता है। रमज पाई अगले ने, इत्थे दो नहीं रहने, इत्थों इक्को ही रह सकता। यदा मतलब ये थोड़ा मसीत जी 2 फुट सी, मसीत कड्डी वड्डी आ हुंदियां ने रमजां मुरीदां दियां ते मुर्शदां दियां। उन्हें कहा, जी मैं मंसूर, मैं रहना चाहना। अंदरों आवाज़, इत्थे 2 नहीं इक्को ही रह सकता है, बाहर बैठ जा। मंसूर बाहर बैठ गया। मसीत का दरवाज़ा रोज़ खुलता है, लोग रोज़ आउंदे ने, पर मंसूर लोगों दियां जुत्तियां साफ करन लग पिया। आह मन में सह, जुत्तियां साफ करन लग पिया। कुछ दिनों बाद उन्हें समान मंगा के टुटियां जुत्तियां गंढन लग पिया। कदी उन्हें दोबारा दरवाज़ा खड़का के जां खुले दरवाजे च अंदर जान का हीया नहीं किया। कई महीने लंघ गए। जुनैद उन्हें मसीत का बूहा खोलिया तो बाहर आया। वह भी कई महीनों बाद आया। उन्हें आवाज़ दी, मंसूर बैठा सी, जुत्ती गंढ रहा सी। उन्हें आवाज़ दी, इत्थे मंसूर अल हिलाज आया सी, तू है? मंसूर वेख के जुनैद वल कहंदा, आया सी पर मंसूर गवाच गया है। आया सी
पर हुण रिहा नहीं, मर चुका है मंसूर। ते जुनैद कहंदा मैनू भी पता सी मर चुका है, तां ही मैं बूहा खोल के आप लैण वास्ते आया। गल बड़ी वड्डी है प्यारिओ, कहण नूं कमाईआं वालिआं दीआं गल्लां सी ते चलो माइक ते बोल के तुर गया, मन च सहना। जे सिखां च देखो, आप कहोगे भी सिखां विचों ये तां मंसूर दी सुनाई गल, उन्हें कहा मैनू पता है तू मर चुका, मैं तेनू लैण आया। मसीत तां उही है, दायरा भी होए, मसीत कोई वड्डी नहीं होगी। यही कारण मैं जदों किते भाई मंझ दी गल करने आ, वो कबर नूं पूजदा सी पहलां। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा तेनू कबर छड्डनी पैगी, चौधरी पुणा चला जाएगा, लोकी तेरे विरोध विच हो जाणगे। उन्हें कहा सब कुछ मैनू प्रवान है, तुसी किरपा करियो मैनू सहण दी दात दिओ, मैं सब कुछ जर लवां पर तेरे तो बिना किसी दे बूहे उत्ते ना जावां। इस तरह होया ना, उन्हें मन च सहा प्यारिओ। मैं आप नूं तां थोड़ी जी बेनती कीती कि गुरु की गल आप मन के मैं शब्द तो दूर नहीं जाऊँगा। इत्थे हजूर कहते हैं जो गुर कहे सोई भल मानो, उत्थे कह रहे सन गुर की आग्या मन में सह। हुण देखो अज जिहड़ी शब्द है, मैं अर्ज की कि गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं इस गल नूं चंगी तरह पकड़ लै, इस विचार नूं कि नाम तो बिना सब मिथ्या है। हुण एक सवाल उठेगा, नाम की है? की है नाम? थोड़ा जिहा ध्यान आप जी दिया जे। मैं कोई ना कोई साखी जां कहानी लैके इस गल नूं यतन करांगा भी जिन्नी को आप दी मैं सेवा कर सकां, पर इहदा मतलब ये नहीं कि मैं नाम बारे सब कुछ कह जाना, क्योंकि नाम बारे अज तक मुकम्मल कोई कह ही नहीं सकिया, नहीं कोई कह सकता। नाम की है? असीं वाहिगुरू शब्द कहने आ, राम शब्द हुणे पढ़िया, राम नाम, गोबिंद नाम, सारे शब्द हुंदे आ। अल्लाह शब्द हुंदा है, कबीर शब्द हुंदा है, करीम शब्द हुंदा है। नाम की है? आप जी का ध्यान मैं एक बाणी की कोई तुकां वल ले जावांगा। इत्थों तक कि गुरु नानक साहब जी ने सब तो पहला बाणी विच झोली अड्ड के जिहड़ी रब दे गुरु तो दात मंगी, वो नाम ही मंगिया है। जे को जाना आखा नाही, नाम ना आख्या नहीं जा सकता। कहना कथन ना जाई, गुरा, इत्थे पाठ गुरा करना है, बिंदी ला के नहीं करना। गुरा ये एक वचन है, सतगुरु गुरा एक देह बुझाई। मैनू सतगुरु एक गल समझा दिओ कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए, मैनू नाम ना विसर जाए, मैनू गल समझा दिओ। गुरमुखो नाम की है? अज सतगुरु कहते हैं सब कुछ जाएगा पर सिर्फ नाम रहेगा। तो मानसी की वाहिगुरू शब्द रह जाएगा, कि राम शब्द रह जाएगा, कि यहूदी यहोवा कहते हैं वो रह जाएगा, कि आप गॉड शब्द वरते हो वो रह जाएगा। नाम की है? मैं आप जी को सिर्फ एक बारी पहला भी अर्ज कर चुका, अज फिर मैं रिपीट करना चाहता सा कि सवाल है जे मिथ्या है नाम किवें रह गया? नाम की है? पौड़ी है आसा दीवार दी पहली, उहदा पाठ करना मैं। पौड़ी आपी ने आप साजियो, ध्यान दे आज इस तो आ बस ये गल क्लीयर हो जाएगा। नाम की आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, बड़े गहरे अर्थ ने दे। दुई कुदरत साजी है, ये दूजा कौन आ गया विच? आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। अगे दाता करता आप तू, तुस देवह करह पसाओ, तू जानोई सब से दे लैसैं, जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। ये पौड़ी है ना। हुण इस नूं सुनो बेनती नूं, आ थोड़ा जिहा आप जी ध्यान दे आज मेरी इस गल वाल। गल तां बाबा जी दी वे। आपी ने आप दो शब्द आ गए। आपी ने आप साजियो। हुण आप तो पहला है आपी, चलो नन्ने ते दुलावां लगियां ने आपी ने। हुण आपी ने कौन है?
ਜੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ, ਆਪੀ ਤੇ ਆਪ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮੇ ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਾਂ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪੀ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੀ ਨੇ, ਆਪੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਜਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਜਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਲਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਦਕਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਰਖ ਹੈ। ਉਦਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੈਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਆ ਹੈ ਆਪੀ ਨੇ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜਬ ਉਦਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੂੰ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਰਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਸ ਗੱਡੇ, ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਮਰੂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਢੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਡਮਰੂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਜੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ, ਕਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਡ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ, ਆਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਛਾਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਂਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਸ ਡਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਗਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲਾ ਕੇ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਢਲ ਗਈ,
मैल सड़ गई। उन्हें फिर उसे नूं कट के जां उहदे विचों मुंदरी चैना छप्पां जो कुछ भी गहने ने कई गहने बना दिते। पर याद रखियो पहला गहने कोई नहीं सन, उसे सोने दे विच समाए हुए सन, पर सुनार ने उन्होंने बाहर कढ़िया, गहने बन गए। 5-10 साल 20 साल गहना बीबियां पाया, उदों बाद सुनार नूं वेच दिता। उन्हें जिन्ने गहने सन सारे इकट्ठे करके फिर कुठाली सट्टे, थल्लों अग लाई ढाल के फिर सोने की डली बना दी। सौखा समझ का तरीका है ना। जदों गहने नहीं उदों वो डली दे विच सन, फिर निकले तो वख वख हो गए, वख हो के भी सोना उन्होंने तो वख नहीं होया। मान लो डली सोने की, डली शब्द वरत्या बाबा जी ने कहा अलंकार मिल थैली होई गए ताते कनक वखानी। गुरु ग्रंथ साहिब तो हुक्म दी अलंकार का अर्थ हुंदा गहना ते थैली का अर्थ हुंदा डली बन जानी। गहना डली हो गया, भावें उस डली चों उस टुकड़े चों या सोने की इट चों गहने निकले, तुसी उन्हां नूं इत्थों लिजा के इंडिया किन्ने मील दूर लै जाओ, 7 समुंदर दूर लै जाओ, पर सोना नाल ही जाना जे, सोने दा गहना। पर जिदन प्यारो ढालोगे फिर डली दी डली बन जानी है। बस आख है रचना। थोड़ा जिहा मैं फिर बेनती जी, मैं नाम की गल नहीं की। वो जिमें सोने चों निकलदा है गहना फिर दोबारा ढल जाता है। वाहिगुरू जी जिदन अपने आपे तो रचना की, उन्हें पता नहीं किन्ने को खंड ब्रह्मंड साज दिते आ। हुण ये चलो साइंस पढ़न वाले पता है, आइंस्टाइन ने गल की भी फैलाव हो रहा है, पर उहदा जिक्र ना किया ज़्यादा। पर हुण ये कहा जा रहा भी ये ब्रह्मंड फैल रहा है, ये सुकड़ नहीं रहा, ये वध रहा जे। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहते ने जदों अपने आपे विच सी, सुन समाध भी सी, उदों उन्हें अपने आप का पसारा किया। ते पसारे का अर्थ केवल धर्म स्थान नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं, पसारे विच उन्हें चंगे भी पैदा किए ते मंदे भी पैदा किए। जिन्हों कबीर साहब ने कहा अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, सब तो पहला अल्लाह, जिन्हों आप ही ने बाबा जी कहते पे अव्वल अल्लाह, सब तो पहला अल्लाह आप ही ने। फिर की जी नूर उपाया, जिन्हों गुरु नानक साहब कहता आप ही ने रचियो नाओ नूर। नूर तो बिना ये संसार नहीं हो सकता, ये चंगे भी बने ते मंदे भी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हुण ये फिर मैं उस विषय ते आवांगा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नाम सच बाकी झूठ। पर जदों बंदा ही मर जाना है, अखर ही नहीं रहना, फिर नाम केड़ा रहना है। बस इसे नूं अर्ज कर लगा, आप ही ने आप साजियो। उन्हें जदों साकार किया अपने आप नूं, आ जिन्ने खंड ब्रह्मंड ने। एक होर गल जे, असी कोई चीज़ बनाने, कारीगर हुंदा ना करता, किसी चीज़ का भी कारीगर है, उहदे कोल हुनर है। इंजीनियर बैठे होणगे इत्थे अपने च, उन्हां कोल हुनर है चीज़ नूं बनाउण दा, पर मटीरियल तो बिना किवें बनेगी जी। मान लो एक इमारत असी कारीगर लियाउने भी आपां घर बनाना है, उन्होंने इन्ना पता मैं 2 मंजिली 3 मंजिली 4 मंजिली 100 मंजिली इमारत बना देंगा, तो कला कारीगर खलोता रहे, ना उत्थे लक्कड़ होवे, ना उत्थे लोहा होवे, ना सीमट होवे, वो कला की करूगा। इसदा मतलब कारीगर दे हुनर नाल मटीरियल जरूरी है। जे पदार्थ नहीं, मटीरियल नहीं, वो कला किवें बनाएगा। रब ने इस तरह नहीं बनाया कि मटीरियल बाहरों आया तो तां बनाया। सच है वे गुरु कहता उन्हें एक हुक्म दे विचों ही सब कुछ बना दिता। इनू चमत्कार कहो, जो मर्जी कहो, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दे। इनू एक होर डूंगा शब्द वरत्या, तुसी रोज़ पढ़ दो, ये मैं जपजी साहब चो कोट कर रहा। एक शब्द पढ़ दो, हुक्मी होवन आकार, ते थे नहीं क्या बंदे। जिन्ने भी ढांचे ने ये हुक्म चो निकलिया। गुरमुखों मेरी बेनती है, जदों उस निर्गुण ने सुन ने अपना पसारा किया, ये नाम तो बिना बाणी कुछ नहीं सकता, नाम तो बिना कुछ नहीं बन सकता। हुण धर्मां ने ना आपां असीं वाहिगुरू कहने आ, पर सतनाम कहने आ, कोई राम कहंदा, अल्लाह कहंदा। गुरमुखो नाम असल च वो शक्ति है कि जिहड़ी इस कीर्त नूं करते दे नाल अंदरों जोड़ के बैठी हुई है।
नाम तो बिना आ नाम तो बिना वाजा है। आप रोज पढ़ते हो अखरी नाम, अखरी सलाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन ए लिखे ते सिर नाहे। हुण महाराज की कह रहे? फिर अगली गल उस अखीर ते जेता कीता तेता नाओ विण नामे ना ही को थां। कोई नाम तो बिना थां है? गुरमुखो इसनूं फिर ध्यान नाल तुहाडा धन्नवाद, तुसीं एकाग्रता नाल मेरी गल सुन रहे हो। बाबा जी दे बचन, उस आपी ने जिहड़ा आप साजिया साकार कीता, उन्हें नाम पैदा किया। नाम तो बिना कुछ बन ही नहीं सकता। नाम एक एनर्जी है, नाम एक शक्ति है जिहड़ी सानू नामी नाल जोड़दी है। इनू थोड़ा जिहा सौखा बना दियां। सूरज तक कोई पहुंचा जी, ठीक है, सानू रोशनी दे रहा है। सूरज नाल साडा संबंध किन्ने बनाया है? किरण ने ना, रोशनी ने बनाया। असी इस धरती ते बैठे हैं, सूरज किन्ना साडे तो दूर करोड़ां को, पर जदों किरण निकलती है, किरण हर बंदे का संबंध सूरज नाल। उन्हें बनस्पति का संबंध बनाता, बंदियां का बनाता, पंछियां का बनाता, पशुओं का बनाता। सूरज एक है, एक सूरज विचों निकलदियां किरणां ने एक करोड़ां जीव इक्को दम उस किरण ने सूरज नाल जोड़ के रख दिते। रब वैगुरू जी एक है, नाम दी किरण ने सारियां नूं रब नाल जोड़ के रखिया होया। किसी नूं समझ पै ना पै, कोई ना तो बिना खाली है। वो जिहड़ा नामी है, पर ओदा नाम दा अर्थ ये नहीं करांगे जिवें इस्लाम कहंदा सतवें आसमान ते है, जिवें सिरजदे ने उत्थे बैठा है। नहीं, वो जिथे नाम होवेगा उत्थे नामी जरूर होवेगा। फिर बेनती, जिथे नाम है उत्थे नामी। नामी दर समझ गए ना, जिदा नाम है। इत्थे सतगुरु कहंदे ने भाई सिखो, नाम एक शक्ति है, नाम एक ताकत है, नाम एक सेतु है। वो सानू नामी नाल जोड़दा है, ते जिहड़ा नाम जपण वाला है सारे गुण उहदे अंदर नामी दे आ जांदे ने, जिहड़ा नाम नाल जुड़ जांदा है। इसे नूं सतगुरु ने कहा, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। आ दुई कुदरत, दूजी माया कर दे अर्थ, दुई द्वैश वाला नहीं। इस द्वंद दे विच भी वो आप वरतदा पिया है। द्वंद दा अर्थ विपरीत, हरख सोग, खुशी गमी, चंगा मंदा, पाप पुन। इनू फिर थोड़ा ध्यान नाल सुनियो। मैं आपनूं एक होर बेनती करना कि आपां कहांगे भी दोवां पासे किवें, पाप पुन, खुशी गमी, जन्म मौत, हरख सोग, मान अपमान, उस्तत निंदिया, दोवां सिरियां का आप स्वामी है। वो दोवें सिरे ओहदे ने। इसे करके जपजी साहिब विच शुभ कर्मां नूं भी रब दी कार के है, ते मंद कर्मियां नूं भी रब दी कार के है। असंख जप असंख भाओ, उहदे अखीर च कहंदा जो तुद भावै साई भली कार। ते जदों असंख मूर्ख अंध घोर किया, नानक नीच कहे विचार, उहदे विच भी कहंदे जो तुद भावै साई भली कार। मैं फिर अर्ज करा, नाम उहदे चों अपनी निकली, जिहड़ा सुन सी नाम उहदे चों निकलिया। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, फिर दुई कुदरत साजिए, फिर साज के कर आसन डिठो चाओ। आसन दा अर्थ हुंदा टिकाणा बना लेना। डिठो वेख रहा है चाह दे नाल, कर आसन डिठो चाओ। फिर अगली गल, वो नरजिंद नहीं भी है ही नहीं जी। अगे गुरु जी कहंदे आ, वो करता है, पर करते तो पहला दाता है। जो कुछ उन्हें कीता पहला, वो प्यार दाता प्रेम तो बिना नहीं बनिया जाता। सीधी जी गल, किसे बंदे ते तुसी तरस करो, ये उदाहरण दुनियावी है, उस तरस विचों निकलेगा मैं कुछ दियां। रब ने जे दात दिती, उन्हें करते तो पहला दाते वाला काम किया है। जीव बाद च पैदा हुंदा, रोजी पहला बनाई बैठा है। पहलों देता है रिजक संवाह, पिछों देता है जंतु पाह। दाता करता, वो बनाण वाला भी है, दाता भी दे रहा, दाता भी है। सच एवे गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन आउंदा है कि प्रथम है माखन, पाछै दूध, मैलो कीनो साबण सूद। रामकली राग च कहंदे ने पहला जदों बच्चे का जन्म नहीं होया, चाहे इंसान का बच्चा, पशु का बच्चा, जिहड़े स्तनधारी जीव ने जेरज विचों ने,
ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਜੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈਂ ਕਰੈਂ ਪਛਾਓ, ਤੂੰ ਤੁੱਥ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸ ਦੇਵੈਂ ਕਰੈਂ ਪਛਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਜਾਪਣੇ? ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਦ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ ਪਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਦ ਰੂਪ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾਦ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। शरीर बारे क्या? नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं, इसका विश्राम सुन समाद अनहत तै नाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। गुरद खलाई मोरी जित मिर्ग परत कै चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। नाद किदे च नहीं जी, वो उस नाद का रस भी वखरा है। पूर्व ने यदी बड़ी खोज की, जोग मत ने बड़ी गल की। हुण आपां कहांगे जी गुरबाणी तो इस नाद नूं मानदी क्यों नहीं जी। हर जियो गुफा अंदर रख है, वाजा पाउण वजाया, वजाया वाजा पाउण, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां। असी चलो कह देंगे जी गुप्त दिमाग, दिमाग थोड़ा है, 10वां गुप्त रखाया। पर यह नहीं क्या तू आ खट चक्कर भेद। हालां मैनूं पता है भी 6 चक्कर जिहड़े वक्री वक्री थां, इन्हां दे रंग वक्रे, इन्हां दे पत्ते वक्रे ने। इत्थे गुरु ने क्या सौखा काम है वे, गुरु द्वारा लाए भावनी इकना। बस आ देखो भी ये खंडन ना करो, नहीं ये कहो है सच। पर गुरु ने आ तरीका नहीं दसिया हठ वाला। गुरु ने क्या, गुरु ते भावना बना शब्द कमा तेनों भी मिलेगा। गुरु द्वारा लाए भावनी इकना 10वां द्वार दिखाया, तैं अनेक रूप नौ नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। मेरी बेनती सुनियो, गुरमुख नादंग वो शब्द नाद हो के सब च वज रहा है, पर सारे सुनते आ नहीं, सुनते ना। अगे है गुरमुख वेदंग, वेद का लफ्जी अर्थ वैसे ज्ञान हुंदा है। चलो आ नास्तिक शब्द भी जिहड़ा चलिया ना, जे पुराने कोशवा हुण जिहड़ा बंदा नहीं मनदा, कहंदे छड्डो नास्तिक। नास्तिक उहनूं नहीं सन कहंदा जिहड़ा रब नूं नहीं मानदा। ब्राह्मण कहंदा सी जिहड़ा वेद नूं नहीं मानदा वो नास्तिक है। वेद का लफ्जी अर्थ ज्ञान है, ग्रंथ रूप विच भी आया ज्ञान विच। गुरमुख वेदंग, जिन्हां ने उस नाद नूं सुनिया, जिन्हां ने सारियां नहीं सुनिया, जिन्हां ने अंदरों सुनिया, अंदर नूं इकागर कर दिता, रब ने सुरत बिल्कुल टिका दी, सच्ची मुच्ची अंदरों कीर्तन होना शुरू हो गया। एक बार मैं अर्ज की, दरबार साहिब का जिक्र है, चलो मैं साखी रूप कह देना भी खुशकी ना बने।
विषा बड़ा डूंगा है, क्योंकि नाम गुरु तेग बहादुर साहब कहते नाम नाम ही रहेगा, पर जदों सब कुछ मिटना उदों गुरुद्वारे रहने ने, उदों मंदिर रहने ने, चर्च रहने ने, कुछ भी नहीं रहना, ना पोथी रहनी, ना कवित रहना, ना अवतार। गुरु कहता ना देव दान वारा ना नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई, कुछ नहीं रहना, सिर्फ तू रहेगा। फिर सवाल उठता भी ये किवें रहेगा, पर यदा अर्थ हो सकता है मुकम्मल ना होवे, पर जिन्नी कुछ समझ कि गुरमुख प्यारा तुरिया जा रहा सी दरबार साहब की परिक्रमा च, आपो अपनी भावना है जी, जे मैं पहले ही इस बिरती नाल तुर गया, मैं इस चीज़ का इत्थे खंडन करना है, तुसीं पुट्ठे भी लटके रहो, पल्ले कुछ नहीं पैना। दरिया वग रहा है, तो जे मैं ये कहा मैं पानी पीना है, तो मैं बुक कोई नहीं करना। गुरमुखो पैरों के कुलों नदी दरिया वगेगा, पर घट्टो घट बुक करके झुकना तो सानू पेगा ना। मैं झुकना कोई नहीं आकड़ च, तो भावें सारी जिंदगी मैं कहा भी वो दरिया के सराहने मर जाएंगे, पर पानी नहीं पैना, कोई थोड़ा जा आप उद्यम करके। वो एक सज्जन अंदर कीर्तन हो रहा जी, वो बाहर उच्ची उच्ची बाणी पढ़े पिया परिक्रमा च। मैं एक बार सुनाई सी गल, वो लंघण वाला साडे वर्गा कोई ज्ञानी होना भी, जिन्होंने उपदेश देने की आदत पै जाए ना सच्ची लो, वो लंघदियां नूं उपदेश दे ही जाता। असीं ठीक है माइक ते बोलने आ, पर दुआई रब दी ये भी एक नशा हुंदा जे, दूजे नूं गल कहण दा, इह च रस मिलदा है, ईगो बनदी थोड़ी थोड़ी। रब मेहर करे तो बचाए। उन्हें कहा जी अंदर कीर्तन हो रहा है, तो तुसीं बाहर बैठे बाणी पढ़ी जाते हो, उच्ची उच्ची बोलना पिया परिक्रमा च। उन्हें क्या कहता, गुरमुखा जदों घर नूं चोर पै जाण ना, फिर उच्ची रौला पाईदा हुंदा है। कहता मैं समझिया नहीं। कहता तेनू नहीं पता, मेरे अंदर पै गए ने चोर, मैं इत्थे परिक्रमा च आया, मैनू पै गए ने काम क्रोध लोभ अहंकार फुरने तंग करते ने। मैं बाहर खलो के उच्ची उच्ची बाणी पढ़ के आवाज़ां मारना, गुरु रामदास मैनू बचा लाए। वो कहता भी मैं एवें तेरे ते तरक कर लिया, तू अपनी तो ठीक है। तो बाणी चो बड़े शब्द जे गुरमुखो, जिहदे विच पुकार कीती मैनू बचा लाए। असीं अपनी बुद्धि नाल बचना चाहते हैं। अज तक जिहड़ा बुद्धि नाल बचन का यतन करदा रहा, वो तिलक गया। जिहड़ा शब्द नाल बचन का यतन करदा रहा, उहनूं कोई हरा नहीं सकिया। हूँ गुसाई दा पहलों आडड़ा, मैं गुरमिल उच दुमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया, देव बैठा वेखै आप जियो। उत्थे कहंदे निहते पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती। कहानी जी मैं थोड़ा टाइम प्रबंधकों को कहांगा, मैं 5-10 मिनट लेना है प्लीज़। देखो वो कहता तू ठीक अगां गया जी। एक सज्जन अखां बंद करके परिक्रमा च बैठा आराम नाल, उहदे मन च इहनूं भी उपदेश दे जा भी भलिया भी तू अखां बंद करके बैठा, अंदर कीर्तन कोल बह गया, उहदे गोडे नाल गोडा लाया, उहदे नेत्र खुल गए। कहंदा बाबा जी भाई साहब अंदर कीर्तन हो रहा है, तुसीं बाहर बैठे हो। उहदियां अखां च खुमारी सी। कहंदा गुरमुखा मैं अंदर भी बहना हुन्ना, वो ब्रह्मंड का कीर्तन हो रहा, आवाज़ स्पेस च आ रही है, मैं हुण पिंड का कीर्तन सुनना पिया वां। पिंड का अर्थ शरीर का, मैं पिंड चों कीर्तन सुनना। कहंदा गुरमुखा तू भी सच्चा है, बोलण वाला भी सच्चा, जिहड़ा चुप कीता वो भी सच्चा। अगां गया 68 तीर्थ कोल एक सज्जन ढोल आ के इस तरह पिया जी, ਉਹਦੇ मन च सुता इनू तो ठा दिया। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ सच्ची मुच्ची ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ पानी ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ सन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बाबा जी अंदर कीर्तन हो रहा, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ गुरमुखा सुता नहीं सा, मैं गुरु रामदास की गोद पिया मानता सा, तू मैनू उठा दिता। एक बंदा है, मैं फिर 3 बंदे नूं मिले ने, तिन्हां दी आत्मिक अवस्था वखरी वखरी है। कोई बोल रहा है, कोई चुप बैठा है, कोई सच्ची मुच्ची नेत्र बंद करके जिन्हों नींद कह रहे हैं उहदे टिकिया होया। मैं आपनूं सिर्फ एक बेनती करांगा कि नाम उहदी ताकत है। गुरु ने नाम कमा के दिता। आ जिन्नी बाणी है इनू गुरमुखो तुसी जिन्ना मर्जी पढ़ो, इनू अकैडमिक पद्धर ते मत लियाओ। तुसीं कहोगे स्कूलों के सिलेबस बना दियो, मेरी अनपढ़ता ना मेरी सुनियो भी समझियो। गुरमुखो
ये धुर दा ज्ञान है, ये उन्हां च आया जिहड़े एक दिन स्कूल भी नहीं गए। रविदास साहब गए। इत्थों तक गुरु रामदास की हिस्टरी विच किते भी संगीत सीखना, पोइटरी सीखनी किते जिक्र नहीं आउंदा, पर जिदन गुरु बनते ने तो 19 राग गुरु नानक दे, 11 राग अपने को लैके 30 रागां च बाणी पे उचारते हैं। नाम एक ताकत है। असी खत्म हो जाएंगे पर प्रभु का नाम खत्म नहीं होना। तो इसे करके गुरु कहता तू नाम विच जुड़ जा, तेरा सथूल शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, जिहड़ी तेरी जोत है परम जोत विच लीन हो जाएगी, तुम ही कदी नहीं मरेगा। मेरी बेनती समझ गए ना जी। एक बूंद है मारूथल च पैगी सड़ेगी, तो जो समुंदर च डिग जाएगी फिर की होगा, विराट हो जाएगी। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, वो सिखो मेरी गल सुनो, महाराज भाई मन नूं समझा रहे हैं, ये अर्थ आप करने हाँ। मैं थोड़ा जिहा आप जी का समा गहरा लै गया, पर मैं यतन किया भी गल आप कर सकी भी आखिर नाम की है। पर यह भी नहीं कि जो मैं कह गया आखिरी नाम ये, क्योंकि नाम की गत कौन जानता। पिछले दिन में क्या हजूर ना मिठन कोट गए, ये मैं साखी बड़ी बारी सुनाई है। उत्थे मियाँ मिठा सी जी, तो पुराने जन्म साखियां च कई बोल बड़े शरधा वाले ने। तो मैं पिछले दिन क्या सी जी, जेड़े मुसलमान फकीर सन वो ते दूजे सिद्ध, ये दो बंदे जेड़े ने गुरु नानक साहब नूं जदों मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी की गल करते सी, क्योंकि सिद्ध भी जेड़े ने शब्द कमाते पे ने। जेड़ा बंदा बर्फ च बैठा कोई ना कोई साधना तो है ना, तो जेड़े फकीर सन उन्हां कोल भी सी। ते जदों महाराज उत्थे गए जान लगे मियाँ मिठे कोल, ते वो बंदा सी अंतरजामी, अंदर दी जान लैंदा सी। ये भी एक एकाग्रता विचों जी कुछ दिन तुसी जप करो, फुरनियां नूं छंड के रख दिओ, सच एवे तुसी आउंदे बंदे दे अंदर नूं पहचानन लग पोगे की कहना चाहता है। जदों महाराज उधर गए ते मियाँ मिठा बैठा सी अपने चेलियां च। साखी वाला कहंदा आवाज़ मैं साखियां तां लै लियां भी कुताईए ना। वो कहंदा मियाँ मिठा खौमे भी सी, गद्दी ते बैठा, कहंदा गुरु नानक साहब बारे, कहंदा यारो मुरीदां नूं कहंदा यारो नानक आ रहा है, तुसीं देखियो इस तरह ला के अज मैं रख देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। ते महाराज जांदे पे आ ते हस पे। मरदाना पुछदा हसे क्यों? हजूर कहंदे ने वो कह रहा है कि सानू इस तरह लाएगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। कहने लगे मिल नहीं दे, जे करतार दी कृपा वरती तो इस तरह नुचड़ जाएगा जिवें निब्बू नचोड़ी दा है। साखीकार कहंदा वो मियाँ मिठा उत्थे पै गया, वो अजे मिले नहीं। वो चले कहने होया कि अगों फिर कहंदा मुरीदां नूं यारो दुध तो मलाई ला दिओ, दुध फिर भी काम आउंदा है, निब्बू नुचड़ जाए तो कूड़े दे ढेर ते जांदा है। सच्ची मुच्ची जदों महाराज गए उहदे नाल गल, उन्हें पहला सवाल किया जी नाम की है। मैं फिर आपनूं बेनती करांगा सी वाहिगुरू जपने खां बाणी पढ़ने खां, ये परम अवस्था जिसनूं तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण साधकी आख उखाणे, तेरी मेहर तो बिना थोड़ा। वो आकड़ उहदी भज गई ते कहंदा बाबा जी नूं नाम की है। सतगुरु कहंदे ने मियाँ मिठा नाम की कीमत किसने जानी? कहंदा जी नहीं दसो नाम की है। मेरे सतगुरु दी देह नूं केवल साडियां हड्डियां मास की तरह ना समझो। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भासना भरिया रे। हजूर ने उहदे हथ पकड़े, सतगुरु दी शब्द दी छूह उहदे तुर अंदर इन्नी को चली गई, पूरे तन च तरनाहट वरत गई। इनू तुसी कह सकते हो गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कांस्ते। गुर प्रसाद वरतिया, किसे अकह रंग चला गया, चरनाहट छिड़ी, सच्ची मुच्ची जमीन ते बैठ गया, बेसुध होया। जदों होश आई ते गुरुदेव पुछदे ने, सवाल करदे ने मियाँ मिठा नाम की है? अखां भर के कहंदा बाबा नाम की कीमत किसने जानी? मैं आपनूं एक बेनती करांगा, एक तरीका गुरु ने दस्या भी भला मनो, नाम अखरां च है। उंज वैसे
ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਬੜੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤੇ। ਇਹਨੇ ਸੰਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਡਾਈ ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਣੋ, ਆਹ ਪਾਠ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ। ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਿਥਿਆ ਮਾਨੋ ਸਗਰੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਬੀਤ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। हुण इधर सतगुरु दे श्लोक, जो उपजो सो बिन सखै। महाराज कहने राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ये संसारा। जो उपजो अर्थ की लोड़ नहीं जी, सौखा है, जेड़ा पैदा होया मरेगा। जो उपजो सो बिन सकै परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। छाड़ सगल जंजाल कौन जी? राम गयो रावण गयो मिथ्या, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कौन नानक तिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। सारे श्लोक पढ़ के अखीर ते पता है की क्या? राम गया रावण गया बुद्धबुदा सब कुछ झूठा। अखीर ते कहने लगे नाम रहो साधु रहो। राम नाम बिन मिथ्या मानो। महाराज कहते ने सगरो ये संसारा। नाम रहो, परमेश्वर दा नाम रहेगा, क्योंकि नामी ने नहीं जाना। नामी समझ गया ना जी? जिमें मान लो आप जी का नाम है, ये जिदन शरीर आया, शरीर नामी है, जेड़े अखर दिते हो नाम ने। जिदन ये नामी मरेगा नाम नाल ही मर जाने। आया गया मोया नाउ, जिदन मर गया नाम मर गया। पर जे रब ने नहीं मरना तो उहदे नाम ने भी कदी नहीं मरना। तां गुरु कहंदा पिया उहदा नाम रहेगा। नाम रहो साधु रहो, जपन वाला साधु रहेगा। वो शरीर नूं छड्ड भी दे, याद रखियो फिर कादा साधु होया जे मौत नूं मार गई। था नाम रहो साधु रहो। केड़ा रहेगा जी? नाम जपान वाला गुरु रहेगा। रहो गुर गोबिंद। पर गुरु तेग बहादुर सानू समझ नहीं पै रही, किवें पैगी? कहने लगे तां नहीं समझ पैंदी तू जपदा नहीं। ये समझ उन्होंने पैंदी कहो नानक ये जप जगत में किन जपियो गुरमंत। जे किसी ने जपिया उन्होंने समझ पैगी नाम किवें रहिंदा। किड्डी वड्डी रमझ पाई। हजूर कह रहे ने कि रहेगा नाम। यही कारण मैं पिछले दिन भी क्या, जेड़ा सच है ना वो नहीं कदी जाता। बाबा जी ने एक शब्द वरत्या, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। आद सते जुगाद सते प्रतख सते। महाराज ने क्या आद अनील अनाद अनाहत जोग जोग एको, वेस उन्हें किथे जाना। है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। प्यारे जिन्हें रचा उन्हें किते नहीं जाना। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह ने क्या
खालसा अकाल पुरख की फौज। कमांडर नहीं मरेगा, फौज नहीं मरेगी, कायम रहेगी। बड़ा डूंगा शब्द है जी ये कि राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ये संसारा। सारे जाएंगे, चंगे भी जाएंगे। मैं हुणे प्रमाण दिता, आ जिहड़ा सूरज है ना जी, गुरु नानक साहिब कहंदा ये भी जाण वाला है। ये जिद्दन दा पैदा होए घट रहा है। कटंत दीपक कटंत रूपं कटंत दीपं, ये घट रहा है सब कुछ। मैं हुणे बेनती की ना देव दान वा नरा, फिर उस श्लोक ते आ जी, देवते नहीं रहे, दैंत नहीं रहे, बंदियां नहीं रहना, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक। ये फारसी का शब्द अस्त का अर्थ हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह ने बड़ा शब्द वरते जी जफरनामे च, अस्त। अस्त एक दिगर कोई, सिर्फ एक तू है, होर कोई नहीं। एक तू ही, एक तू। अगे ना सूर सस मंडलो, सूरज नहीं रहेगा, ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगी, तारे नहीं रहेंगे। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप न जलो, अन्न पानी थिर ना कोई, एक तू ही, एक तू। अगे कहते ना दादे देहंद आदमी। दादे देहंद अर्थ हुंदा जिन्होंने जज नहीं कहते भी, जज कोल केस है, जिन्होंने इस्लाम च काजी कहते हैं। गुरु जी कहते ਜਿਹੜੀਆਂ कोर्ट कचहरियां ला के जज फैसले देंदे ने, ये इंसाफ देण वालियां नूं एक दिन मौत आ जाएगी। ना दादे देखंद आदमी, ना सपत जेर जमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही, एक तू ही। सिर्फ एक ने रहना है। इसे करके गुरु जी कह रहे आ कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर के मन रे साचा गहो विचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ। जा को इत्थे पाठ जा करना, जा नहीं करना बिंदी ला के। जा पाठ करांगे मैं कहदा अर्थ हो जाएगा अते, और जिन्हों कहने इत्थे जाद अर्थ है जिस। अक्सर साडे सज्जन जदों पाठ करते आ, ये जा शब्द बड़ा आया बाणी च, ते जा भी आया। जिमें जा करता सिरठी, इहदा पाठ कर दो जा, फिर अर्थ गलत हो जाएंगे। जाद अर्थ है जिस ने, इत्थे जा को इहदा अर्थ है जिस नूं, जा को जोगी खोजत हारे। वड्डी वड्डी साधना करने वाले, जोग मत नूं कमाण वाले, अखीर ते हार गए, थक गए। पायो नाहे तैं पारा, नहीं पाया उन्होंने रब दा पार वाला बनना। नारद से चतुरानर से रमनारक से सब हूँ मिल गायो, वेद कतेव ना भेद लख्यो, सब हार परे हार हाथ ना आयो। महाराज कहन लगे जाको जोगी खोजत हारे, पायो नह तै पारा, ते पारा उदा पार वाला बनना नहीं लभा। सो स्वामी तुम निकट पछानो। वाह वाह, कहते ने ओ ना नहीं लभ्या, वो स्वामी तो तुहाडे नेड़े रहिंदा है। सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा, वो तुहाडे विच रहिंदा। गुरु तेग बहादुर कहंदा उहदा कोई रूप थोड़ा है, वो कोई संख चक्कर चतुरभुजी छतरभुजी अठरभुजी नहीं, उहदा कोई रूप रेख ही नहीं हैगा। हजूर कहंदे रूप रेख ते न्यारा, जिहड़े रेख साडे चिन्ह ने ना, उहदे चिन्ह भी कोई नहीं निर्गुण च। रूप रेख ते न्यारा, वो रहिंदा नेड़े है। पर क्यों नहीं, मैं भी उहदे विच शामिल आ, क्यों नहीं काबू आउंदा? क्योंकि मन ने अपनी दुनिया बड़ी वसाई हुई, उहदे नेड़े जांदा ही नहीं, थल्ले नूं भजदा है। मस्कीन साहब ये गल बड़ी कोट करते होंदे सन, जदों किसी दी इकट्ठे होना, इंडिया भी इत्थे इंग्लैंड भी, वो गल कहंदे हुंदे सन, कहंदे सन भी सुरत नूं उच्ची चुकण लई जिंदगियां लग जांदियां ने, मैली करन वास्ते जिंदगी नहीं लगदी, एक गलती धो के रख दें, मैलियां कर दिंदी। उदाहरण की देंदे सन कि टैंकी ते पानी चाढ़न वास्ते प्रैशर थल्लों देना पैंदा है, उत्ते गए नूं थल्ले सट्टन लग्गियां किहड़ी बिजली दी लोड़ है, बस टूटी खोली ते गया। गुरु साहब सच्चे पातशाह कह रहे आ कि भाई है नेड़े है हजूर, कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। दुंदर दा जेड़ा तेनू दुलत्ते मारदा तेरा मन, इनू घुट के बन एदियां लत्तां ते सुंदर आपे इहदे ते आके बह जाएगा। दुंदर बांधो सुंदर पावो। गुरु जी कह रहे आ कि सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा, अखीर ते है पावन नाम जगत में हर को। पावन दा अर्थ पवित्र, नाम का असीं जिक्र करके आए हैं।
जगत में हर को, जगत दर ते संसार हर को दा हर ते खरीदा। कहते इस जगत विच सिर्फ परमात्मा का नाम ही पवित्र करने वाला है, होर किसी ने तेनों पवित्र नहीं करना। इत्थों तक तू बाहर दा इशनान करी जा, जिन्ने मर्जी कर्म कांड करी जा, नाम च इन्नी ताकत है कि कई जन्मां दी मैल नाम एक खिन विच कट के रख दिंदा है। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, ये मैल धो दिंदा है। हजूर कह रहे ने कि वो पवित्र नाम कबहू नाए संभारा, नाम दी कदी तू संभाल ही नहीं कीती। अखीर ते सतगुरु कहते जे अज तक नहीं कीती अज ही कर लै। नानक शरण परियो जग बंधन, ਇਹਦਾ अर्थ गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं आप जी की शरण च आए जग बंधन। बंधन का अर्थ है नमस्कार, ये दद्दे नाल बंधन, बंधन नहीं। हे जगत के मालक वाहिगुरू जी, मैं तेनों नमस्कार करके तेरी शरण च आया वां, क्योंकि मैं झूठ पिछे लग गया। तू किरपा कर मैनू अपने नाल जोड़, राखो बिरद तुहारा। तेरा बिरद है जिहड़ा तेरी शरण च डिग पैंदा, तू उहनूं बचा लेना है। ये तेरा सुभाग है, जिन्हों सतगुरु बाणी च कहते तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया। देखो किड्डी वड्डी गल है। तो मैं आया, मैं तेरे कोल आया, शरणी आया, एवें नहीं आ गया, भरोसा आया। मैं इस भरोसे नाल, इस यकीन नाल आया, किरपा आया, तेरे दर ते मत्था टेकन आया, तू मेरे ते किरपा जरूर करेगा। फिर देखो तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया, किरपा आया, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरें पठाया। मेरा ख्याल अज दरबार साहब हुक्मनामा आया, सतगुर आयो शरण तुहारी। हाँ उत्थे अज हुक्मनामा है सी। मैं क्या सच्चे पातशाह अज तुहाड़ा बचन भी है, नानक शरण परियो जग बंधन, राखो बिरद तुम्हारा। तो उत्थे हुक्म आ रहा सी, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी, अवर न सूझै दूजी ठार, हार परियो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखा छूटै, हर निर्गुण लेहो उभारी, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। महाराज कहंदे आ तू सब नूं रिजक देण वाला है। गुरु साहब कहंदे शरण च पै जा। मैं आप नूं सिर बेनती करांगा, मैं भी जाना है, तुसी भी जाना है। इस धरती ते किसे नहीं रहना। ये धरती छड्डो, ये धरती तो एक निक्का जिहा रेत का कण है जो कोई रब ने सिरजिया, पर ये बड़े कमाल दी, इदू वधिया प्लैनेट किहड़ा मिलेगा जी। रब ने सच्ची मुची स्वर्ग बनाया। मैं पिछले दिन ही क्या, जिहड़े पंजाबी लिटरेचर नूं प्यार करदे आ, एक साडे नेड़े नाभे नेड़े अमरकोटगढ़ च सज्जन है, उन्हें एक नावल लिखिया सी स्वर्ग दी मौत। आ कई साल पहला लिखा वायरस की गल उन्हें की सी, आ की निकलदा है जिहड़ा अजकल चलदा पिया। ये रब ने धर्मशाला बनाई है गुरमुखो। नास इन्हें होना है, पर धर्मशाला च जे डाकू कब्जा कर जन फिर की करांगे। ये रब ने बनाई सी धर्मशाला, इत्थे आ गए डाकू। सच्ची मुच डाकू दर्द कले सिख ना करियो। हाय पैसा सब कुछ रब दा, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल सी। तिस भी जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। अनंत बनाए, अनेका बनाए। इस अनेकता उत्ते कुछ बंदियां ने कब्जा कर लिया, भावें सुपर पावर कहण जो भी मर्जी कहो। गुरु साहब कहते कबीर धरती साध की, तस्कर बैसे गाहे। धरती से साधना करने वाले ते डाकुआं ने कब्जा कर लिया इत्ते। इसलिए ते ना जी महाराज सच्चे पातशाह कहते आ सब कुछ जाएगा, नाम नहीं जाएगा, शब्द नहीं जाएगा। तुसी नाम च जुड़ जो सिखो, तो नाम ही तुहानूं पार ब्रह्म तक लैके जांदा है। नाम पौड़ी है, नाम बेड़ी है, नाम तुला है, नाम जहाज है। सच ये वे कि सब कुछ है ही नाम, नाम तो बिना कुछ नहीं। असी अखरी नाम जपया करिए, सतगुरु कृपा करे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो।